Hello everyone. In this video we are going to talk you through a proper technique on obtaining vital signs. It's so important that you use the correct technique in order to obtain accurate result. The 5 vital signs will review our temperature, pulse, respiration, blood pressure and pain. इस वीडियो में हम वाइटल साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि वाइटल साइंस कैसे लेते हैं, उसकी प्रॉपर टेक्निक क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके टेक्निक्स क्या क्या है। जो इसमें 5 वाइटल साइंस के बारे में हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन और बीपी यानी ब्लड प्रेशर एंड पेन. पेन इज द 5th vital signs. Okay, let's start. First is overview. After completing the video you will explain the following vital signs. Proper techniques is required to ensure accuracy of results and equipment needed for the taking vital signs. Okay. Temperature. First of all, we should know temperature. What is the normal temperature of our body? Normal temperature is 97.8 to 98.6 Fahrenheit. Somewhere it will change, and how we will take the oral temperature. For take an oral temperature, remove the probe of the thermometer. Thermometer के probe को हटाना है पहले हमें. And after that, place the probe in the pocket under the tongue. Pocket under the tongue. This is the heat pocket which occurs under the tongue. So we have to place the thermometer here, this side. Okay, base of the tongue. And have पेशेंट क्लोज देयर माउथ, और पेशेंट को बोलेंगे कि अपना माउथ को वो क्लोज कर ले. ठीक. Make sure they have not had anything eat or drink in at least 15 minutes. So normal temperature in adult is 97.8 to 98.6 या 98.6 या डिग्री फ़ारेनहाइट. हमें श्योर करना है, तो हमें टेम्परेचर लेने से पहले हमें श्योर होना है कि 15 मिनट से पहले वो कुछ खाया पिया तो नहीं, 15 मिनट के अंतराल में कुछ खाया तो नहीं है. अगर खाया तो थोड़ा 15 मिनट बाद ही लेंगे टेम्परेचर उसका. किस लिए लेंगे? एक्यूरेसी वो ठीक है. नॉट अगर हम नहीं लेते, नॉट एक्यूरेट इफ पेशेंट इज eaten or drank in the last 15 minutes. Okay. Axillary. Axillary, place probe in the axilla. Have patient put arm by their side. लिस्ट एक्यूरेट मीन्स लिस्ट एक्यूरेट की जब हम इसका टेम्परेचर लेते हैं तो लिस्ट एक्यूरेट आती है, प्रॉपर टेम्परेचर इसमें नहीं आती है. मीन्स फॉर दैट वी कैन से टू टेक एन एक्सिलरी टेम्परेचर, प्लेस द कवर्ड प्रोब अंडर द पेशेंट आर्म. कवर्ड प्रोब को रखना अंडर द आर्म इन द एक्सिला, okay, and have them place their arm by their side. While this is not the most accurate temperature and usually runs a full degree lower than oral, it is a good option if the other routes are unavailable. You could also use a temporal thermometer or rectal thermometer which when appropriate. मीन्स ऐसा कहते हैं कि इसमें जो होता है कि इसमें जो लेस डिग्री दिखाता है, 1 डिग्री कम ही दिखाता है एक्जिला का जो टेम्परेचर होता है. जो तो एक बोल सकते हैं कि मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं होता है. अगर हमें चाहिए कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तब हम एक्जिला से टेम्परेचर ले सकते हैं. ठीक. अगर ऑप्शन है तो हम दूसरी जगह से टेम्परेचर लेंगे, जस्ट लाइक ओरल, रेक्टल, etc. एंड नेक्स्ट is hot temporal. About temporal, you nowadays you very familiar with this thermometer. This is the temporal thermometer. Swipe across the forehead and place on the temple. Follow manufacturer instruction. मीन्स across the forehead पे ये टच करना और फिर वहाँ से टेम्परेचर हमें मिल जाएगा. जो मैन्युफैक्चर का इंस्ट्रक्शन होगा, जो जिस कंपनी ने उसे मैन्युफैक्चर किया उसका इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करेंगे उस थर्मोमीटर. ओके. अबाउट द रेक्टल टेम्परेचर,
Temperatures taken rectally using a glass or digital thermometer tend to be 0.5 to 0.6 degree Fahrenheit higher than when taken by mouth. मीन्स जब माउथ का टेम्परेचर लेंगे उससे 0.5 टू 0.6% 6 डिग्री वो ज़्यादा होगा, हायर होगा उसके, ठीक है। एवरेज नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर होते हैं 37.05 डिग्री सेल्सियस. How to we have to place there this by this method we have to place. Okay, we have pulse. Next we check the pulse, which is the number of times the heart beats in 1 minute. Normal for an adult is 60 to 100 beats per minute. When checking a pulse you have a few options. The first is the apical pulse. To get an apical pulse, place the diaphragm or stethoscope. यहाँ पे stethoscope रखना है, diaphragm पे, यहाँ पे stethoscope रखना. You have to place the stethoscope here and जो ये सिचुएशन होता है, ऐसे नॉर्मल एनाटॉमिकल की बात करें तो जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, हमें फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे उसे रखना है, जो बोल सकते हैं फिफ्थ, दिस इज fifth intercostal space and mid clavicular line. This is clavicle, mid clavicular line and fifth intercostal space के पास हम रखेंगे, तो यहाँ से हम एपिकल पल्स ले सकते हैं. From here we can take the apical pulse. Okay, remember one thing, always listen one full minute of an apical pulse. Okay, up now we will take about the radial pulse. What is radial pulse? To obtain a radial pulse, locate the groove just below the thumb on the one side of the patient wrist. Palpate the pulse and count for the 30 seconds, then multiply by 2, then will give you your beats per minute. ओके, फर्स्ट क्या करना है कि हमें वो थंब साइड को टच करना है, थंब साइड के ग्रुप इधर नीचे बिलो द थंब हियर ऑन द रिस्ट. ओके, यहाँ पे टच करते फिर हमें टेम्परेचर पता लगेगा. फिर वहाँ पे क्या करना है, द रेडियल पल्स हमें जब पल्स मिलेगा, नॉट टेम्परेचर, रेडियल पल्स मिल जाएगी, तो आफ्टर डेट हमें 30 सेकेंड काउंट करना है, 30 सेकेंड काउंट करना है. फिर उसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर कभी लगता है हमेशा कि नहीं है, सही नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो और फिर क्या करना है, हमें फुल मिनट काउंट करना है, रीचेक करना है दोबारा. ओके, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट रेडियल पल्स. अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कैरोटिड पल्स. To obtain the carotid pulse, place two fingers on the thyroid cartilage. This is the thyroid cartilage. Place 2 fingers of thyroid cartilage in the front of the neck के front पे, in the front of the neck. Then slide your finger to the side into the groove just below the jaw line. This is the jaw line. Okay, jaw line. Again you will want to palpate the pulse for 30 seconds and multiply that number by 2. One important thing to know here is you should never palpate both carotid artery at the same time. Okay, हमें क्या करना है यहाँ पे ये करना है कि दोनों फिंगर को थायराइड कार्टिलेज के ऊपर वहाँ पे रखना है, और फिर स्लाइड इनटू उस पर थोड़ा सा स्लाइड करके यहाँ ग्रूव एक होगी वहाँ पे जाना है. फिर यहाँ पे अप्रॉक्स 2 इंच. ओके, फिर वहाँ पे 30 सेकंड के लिए काउंट करना है. ठीक, 30 सेकंड के लिए हम काउंट करेंगे और उसके बाद जितना आएगा उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर एक बात हमें ध्यान में रखना है, बाइलैटरल कैरोटिड पल्स दोनों समय नहीं देखना, मीन्स दोनों साइड हमें एक बार में नहीं देखना है. ओके, नेक्स्ट इज रिस्पायरेशन. When obtaining a patient's respiratory rate, it's important that you don't tell them you are counting their breaths, otherwise they will breathe differently. जब आप ब्रीदिंग रेट ले रहे हो पेशेंट का, तो आप पेशेंट को नहीं बताओगे कि आप उसका ब्रीदिंग चेक कर रहे हो, नहीं तो उसका एबनॉर्मल ब्रीदिंग करने लगे या एबनॉर्मल वो ब्रीद करने लगेगा. ऐसी कंडीशंस होती है कभी कभी. अदरवाइज
one trick is to count the radial pulse for 30 seconds, then while still holding the patient wrist, count the respiration for the another 30 seconds, and then multiply by 2. The patient will think you are still counting their pulse. You can also count respiration while waiting of the for the temperature to result. Some thermometers even have a timer function that will beep every 15 seconds, so you can count respiration. Okay. ये करना है कि हमें जब पल्स चेक कर हमें क्या करना है कि हमें पेशेंट को बताना नहीं है कि हम आपका ब्रीथ चेक कर रहे हैं। जब हम 30 सेकंड्स के लिए पल्स चेक कर रहे हैं उसी समय हम रिस्पायरेशन भी काउंट कर ले सकते हैं, तो पेशेंट को उस टाइम पता नहीं लगेगा कि हम वो चेक कर रहे हैं या रिस्पायरेशन तो अभी चेक नहीं किए, पेशेंट को पता नहीं लगेगा, तो उस टाइम हम काउंट कर सकते हैं जब हम रेडियल पल्स ले रहे हैं। तो अब तो नॉर्मली ऐसे टाइमिंग वाली टेम्परेचर थर्मोमीटर आती है, तो थर्मोमीटर लगा देंगे, उस समय हमारे टाइमिंग का पता लग जाता है कि 15 सेकंड में उसने बीप कर दिया, हाँ 15 सेकंड्स हो गए, हमने पल्स काउंट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट इज दैट tip. So same thing, don't tell the patient you are counting their breaths. They'll breathe differently. After counting pulse for 30 seconds, continue holding pulse but count respiration for another 30 seconds. Same thing. Some thermometers have a timer function that will beep every 15 seconds. You can count respiration while waiting for the thermometer to results. Blood pressure. For the getting blood pressure is not always simple and slapping a cuff on pressing a start. Sometimes we have to take the blood pressure manually. First thing first, your patient should be sitting upright. Your patient should be sitting upright. This is positions, okay? Sitting upright. This is a right method, this is the right method, this is the right method, this is the wrong method. Okay. This is first of all your patient upright sitting method. After that, leg crossed, uncrossed, sorry, leg uncrossed, leg cross नहीं होना चाहिए, with their arm at heart level, जो उसकी आर्म होनी चाहिए हार्ट लेवल पे होनी चाहिए, हार्ट लेवल पे। ओके, आर्म हार्ट लेवल पे, आर्म हार्ट लेवल पे। ओके, if that means you need to prop their arm up on a pillow, then do that. Then you want to make sure you have the right size cuff. Wrap the cuff around the top of their arm and look at the range marking. If the cuff is in range, you can use it. Otherwise, get a bigger or a smaller size as needed. जब हम कफ को लगा रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि जो कफ हो वो उसके साइज का हो। और कफ हम लगाएंगे तो देखेंगे वो मार्किंग तक आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो हम उससे बिगर साइज लेंगे कफ। ठीक है, अगर बच्चा है तो उससे स्मॉल साइज लेंगे कफ। नाउ you can start. The first thing you need to do feel is the patient brachial pulse on the inside their elbow. फर्स्ट हमें brachial pulse चेक करना है यहाँ पे एल्बो पे। ठीक है, आ रही है या नहीं आ रही है inside their elbow. Then you are going to wrap the blood pressure cuff around their arm with the indicator line or arrow pointing to the brachial artery. पे पहले हमें ब्रैकियल आर्टरी चेक करनी है। अगर देख रहे हैं ब्रैकियल आर्टरी आ रही है, हमें पल्स वहाँ पे मिल रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या करनी है, वहाँ पे फिर कफ लगानी है एक पॉइंट पे जाकर के ऊपर थोड़ा। ठीक है, make sure that you have the sphygmomanometer where you can see it and place your stethoscope over the brachial artery. Make sure the valve on the valve inflator is closed. मेक श्योर, आप श्योर करोगे कि ये आपका क्लोज है, नहीं तो ओपन रहा तो फिर एयर पुश करते रहोगे आप, फिर प्रॉब्लम होती रहेगी। ओके, you will want to inflate the cuff by squeezing the valve until you can't hear the brachial pulse anymore, which one average is usually between 160 and 180 mmHg, or inflate to about 30 to 40 mmHg about the patient's baseline blood pressures. Okay, देन आफ्टर डैट पहले क्या करोगे, पुश करोगे। पुश करने के बाद क्या करो, जितने फील्ड कर दोगे आप अप टू 200 तक आप ले जा सकते हो। अप टू 200 के बाद आप स्लोली धीरे धीरे आप ओपन करोगे। मीन्स
Then carefully open the valve very slowly and begin deflating the cuff at about 2 to 3 mg per second. Okay, as the pressure drops, you will begin to hear a boof pulse sound. Take a note of the pressure at that moment, that is your systolic pressure. जैसे जैसे आप डिक्रीज करोगे, वहाँ वॉल्व खोलेंगे, तो जैसे जैसे वो ड्रॉप होगा प्रेशर, तो वहाँ पे एक बुफ सा साउंड सुनाई पड़ेगा. वहाँ स्टार्ट हुआ, जहाँ पे बुफ साउंड स्टार्ट हुआ वो हमारा कौन सा प्रेशर, वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होगा. ठीक है. आफ्टर दैट कंटिन्यूइंग डिफ्लेटिंग until the pulse sound fades and you no longer hear it. The point at which you no longer hear the pulse is your diastolic blood pressure. लगातार हमें जब वहाँ जहाँ से हमें बुफ की साउंड सुनाई पड़ती है, वहाँ से जहाँ से वो नीचे की ओर वो पारा या सुई आती रहती है, तो उस कंडीशन में जहाँ वो स्टॉप हो जाती है वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा. ठीक है. Careful that you are not just watching the needle bones. Okay, that won't be accurate. It has to be what you hear. आपने क्या सुना वो मैटर करता. आप ये मत देखना कि वहाँ बॉन्स हो रही है सुई, वो कंडीशंस मायने नहीं रखते. ओके. समटाइम्स क्या होता है कि कितने दिनों देखते हैं हम, तो वो ऐसा फील होता है कि हमने वो देख लिया, कि वो पारा को देख लिया या सुई को देख लेते हैं, वहाँ पे हिल रही है तो नहीं वहीं होगा, यहाँ से वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गया. ऐसा नहीं होता. जहाँ से आप सुनना स्टार्ट किया वो आपका मायने रखता है. Once you have your numbers, you can fully deflate and remove the cuff. This is a skills that take lot of practice. एक स्किल है जो प्रैक्टिस के बाद ही आएगी. ऐसे नॉर्मली हम एक बार में नहीं सीख सकते कोई भी चीज़, तो अपने फ्रेंड्स पे प्रैक्टिस करें इसका. Next is that same thing is how you have to first is inflate the cuff, slowly release the air from the cuff by opening the valve. एयर को रिलीज करना है स्लोली. फिर उसको 2 to 3 mg पर सेकेंड. जहाँ पे बुफ साउंड सुनाई पड़े वहाँ हमारा फर्स्ट सिस्टोलिक बीपी होगा. हमारा सिस्टोलिक बीपी होगा फर्स्ट साउंड जो सुनाई पड़ेगा, और जो लास्ट साउंड सुनाई पड़ेगा वो हमारा डायस्टोलिक बीपी होगा, या कह सकते हैं जहाँ पे वो साउंड खत्म हो रहा है वहाँ पे डायस्टोलिक बीपी हमें मिलेगी. ठीक है. और ये भी यह है कि जो बॉन्स आर्म ऑन द मीटर को सुई वाइब्रेट होते देख के हमें यह नहीं लगाना है. जब हमें काउंट करना, हम क्या सुन रहे हैं वो देख के बताना है. ठीक है. और फिर उसके बाद बीपी लेने के बाद हमें डॉक्यूमेंटेड कर देना है कि सिस्टोलिक बीपी इतना है, डायस्टोलिक बीपी इतना है, 120/80 mmHg, 130/90 mmHg, जो भी. Next is about pulse oximetry. First, make sure your patient finger are nice and warm. You can even wrap them in a warm towel if you need to, because we need good circulation for the pulse oximetry. We also want them to have no nail polish on. All you have to is apply probe with the red light on top of the fingernail and wait. You should get a result in about 5 seconds, and that's the number you are documented. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें श्योर होना है ये कि पेशेंट का फिंगर है जो वार्म है. वार्म मतलब कि पेशेंट का फिंगर वार्म है. वार्म का मतलब होता है कि वहाँ पे अच्छी सर्कुलेशन चाहिए. जब हम पल्स ऑक्सीमेट्री लगाते हैं तो वहाँ पे अच्छी सर्कुलेशन चाहते हैं. जब गुड सर्कुलेशन नहीं हो तो फिर वहाँ पे हम टावल को लपेट दें कि वहाँ पे वार्म हो जाए, तो उसकी वजह से गुड सर्कुलेशन है, तो जो रिजल्ट आएगी वो एक्यूरेट रिजल्ट आएगी. ओके. फर्स्ट क्या करना है, जब वो फिंगर रेड लाइट स्टार्ट होती है तभी हमें फिंगर को ये लगाना है. हाँ, फिंगर पे नेल पॉलिश ना लगा हो, ये भी ध्यान में हमें रखना है. अगर इफ यू आर still having trouble with circulation, try a different hand or toe, or even use probes for the ears, nose as well. Okay. Use last but certainly not least, document the vital signs. You have to document the vital signs. After that ये नहीं देखना है कि उंगली में नहीं आ रहा है तो दूसरे हाथ में ट्राई करते, पैर में, हेड, नोज में ट्राई करेंगे, ईयर में भी ट्राई कर सकते हैं. ओके. बट वहाँ पे प्रॉपर वार्म होना चाहिए, इसमें यानी सर्कुलेशन वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए. Next is the pain. Pain means subjective. Pain is a subjective data. We can't observe the pain. Okay. We can measure the pain by through the pain scale, but we can't observe the pain
first the pain, subjective means what subject is saying to us. Subject मानी पेशेंट हमसे क्या कह रहा है. ओके, जस्ट लाइक यू. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेन स्केल यूज करेंगे. क्वांटिफाई द पेशेंट्स पेन, उसके लिए हम क्वांटिफाई करेंगे पेशेंट को कितना पेन है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, ये सब. PQRST, ओल्ड कार्ड्स, दिस आर द ऑल अबाउट द पेन असेसमेंट. ओके, थेराप्यूटिक मैनेजमेंट, वाइटल साइंस को नोट करते जाना है हमें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वाइटल साइंस कितना ट्रेंड कर रहा है वो. एबनॉर्मल वाइटल साइंस से ज़्यादा एबनॉर्मल वाइटल साइंस आ रहे हैं तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना, यानी डॉक्टर्स को बताना आगे जाके ट्रीट कॉज जिस रीज़न से हो रहा है उस रीज़न को हमें ट्रीट करना है अगर पॉसिबल हो उस समय तो. ठीक है. पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को फॉर द पेशेंट एजुकेशन दिस इज द पर्पस फॉर द वाइटल साइंस. व्हाई यू आर टेकिंग वाइटल साइंस, व्हाई, then you have to tell the patient why you have to take the vital signs. ओके, आप वाइटल साइंस क्यों ले रहे हैं आप पेशेंट को बताओगे, रीज़न क्या है इसका. ठीक है. फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइटल साइंस, कितने कितने देर पे वाइटल साइंस लोगे आप, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर पे ऐसे वाइटल साइंस लेते हैं एडमिट पेशेंट का, तो बताओगे कि हम इतने देर बाद फिर आपका वाइटल साइंस लेने आएंगे. ठीक है. थैंक यू. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल know about